Welcome back to yet another episode of Shut up! We're Talking। और आज हम बात कर रहे हैं, हम मतलब इनके चरण धो के पी लें तो कमी है, क्योंकि इनकी वजह से काफी a lot of people have gotten the guts to start making videos because of her. We are following in her footsteps and she's paved the way for a lot of badtameez badass women out there on the internet. Hi Kusha, how are you feeling being here? Thank you. I have to give flowers to Malika Dua, who sort of paved the way for all of us. Yeah. Like, I don't think I would ever even get the idea of doing anything if it wasn't for her. But thank you so much for that lovely introduction. Congratulations on the podcast. Thank you you guys so are doing much. so well. And I think it should be the #1 podcast very soon. I think so too. Kusha, वही do you aim want to करना है. ask me what's underneath? Because I'm wearing the underneath bra. I swear to God, it is so comfortable. I live in it now. Just what a fabulous brand, first of all. Thank you. Really required and so affordable. Thank you. Like, I'm just in love. And I made Soumya also try one of the shapers the other day. We exchanged shapers. सबसे पहले you were one of the first few people we sent it out to actually. I Really? remember I had a chat with Yeah. you and I was like, Yeah. will you please try? Because I kind of felt like you are just somebody जो मुझे बहुत ही honest review देगी. Yeah. मुझे in fact I was a little nervous also when I sent it to you. I was like, ये बहुत honest है यार, ये कुछ भी बोल सकती है और इसने अगर सीधा story डाल दी. But I was like, this is a risk I'm willing to take because you never mince your words and I think that's something I like about you. So thank you so much. I think सौम्या को नहीं अभी तक हमने सौम्या अब आराम से आपका साइज वाइज लेकर मैं खुद पर्सनली क्यूरेट करके मैं भेजूंगी. कैसे साइज बताऊं? मैं 5 किलो चढ़ाती हूँ, फिर वही 5 किलो लूज करती हूँ. But good thing about the products is they're very size they have oriented. jumping sizes. बेस्ट क्योंकि मैं तो भाई उसी 5 किलो में ऊपर नीचे टहल रही हूँ पिछले 5 कभी साल मीडियम से. कभी लार्ज कभी एक्सेल ऑलमोस्ट सो इट्स फाइन इट्स ओके. Yeah. How are you doing, Kusha? I'm doing good. I've recently had a breakup with my cook. Oh, tragic. I think we don't talk enough about. I love that we were like, हाँ ठीक है, breakup cook के साथ आराम. It's a very interesting story. मैं बचा के तुम्हारे लिए Do लाई tell. हूँ because ये मेरी ज़िंदगी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट थी. मतलब I really loved her and she was somebody who set my home up with me जब मैं मुंबई आई थी. And excellent, बहुत अच्छा काम करती थी and she was amazing. But एक बार जब मेरे पेरेंट्स आए मुझसे मिलने कुछ आई थिंक पहले साल में, तो उनके कुछ पैसे गायब हो गए. तो उन्होंने मुझे बताया नहीं क्योंकि फैमिलीज़ में वैसे भी कोई किसी से बात तो करता नहीं है. सो उन्होंने मुझे बोला कि हमारे पैसे गुमे हैं आफ्टर दे केम बैक फ्रॉम मुंबई. तो मैंने बोला आपकी गलती है क्योंकि इसकी नहीं हो सकती और कितना धिक्कार है आप पे कि आप ऐसा सोचते हैं. शर्म आनी चाहिए आपको. शेम ऑन यू. ये सबसे पहले आपका शक कैसे जा सकता है. मैंने कहा जस्ट बिकॉज यू कैन डजंट मीन कि आप उस मुंह पर आरोप लगाएंगे. Elitism. फिर शी मूव्ड वेरी क्विकली. चौथे दिन पर उसने मेरे मैनेजर के पैसे ले लिए. तो मैंने कहा ओके आई एम स्टिल नॉट गोइंग टू बिलीव दिस. तुम सब बहुत केयरलेस हो. मेरी मम्मी भी केयरलेस है, मेरी मैनेजर भी केयरलेस है. तुमने कहीं इधर उधर रख होंगे. Somebody was staying at my house at that time and वो आई और उन्होंने कुछ टटोला वटोला ढूंढा वूंढा कहते अरे ये तो पैसे मिल गए आपके मैनेजर के, ये रे. तो उन्होंने ही कुक ने ही ढूंढ के दिए कि ये मिल गए पैसे. सो मैंने कहा बट द प्रॉब्लम इज मुझे नहीं लगता कि चोरी बहुत बड़ा गुनाह है. तो a lot of people were like let's just you should like fire her and I was like no because you know what 95% of what she is she's amazing. अगर वो मेरा राशन मेरा खाना और कुछ पैसे चुरा रही है it's okay. The disparity is far too much. Yeah. और ये जो सिस्टम है इंडिया में of having staff especially for हम लोग जो अकेले रहते हैं, ये बहुत असेंशियल सिस्टम है. इनफैक्ट पता नहीं लोग लव और रिलेशनशिप्स के बारे में क्यों बात करते हैं जबकि हम 95% of 100% ऑफ अ टाइम अपनी कुक्स या अपने डोमेस्टिक वर्कर के साथ स्पेंड करते हैं. तो मेरे लिए बिल्कुल भी मतलब शाय होने वाला टॉपिक नहीं है. मैं इसके बारे में बहुत ओपनली बात कर सकती हूँ. तो 3 साल ऐसा चला. 1-2 बार उसको पकड़ा भी गया. जब भी मेरी मम्मी आती थी तो वो ज़्यादा पकड़ती थी. तो मैं कहती थी भूल जाओ ऐसा कुछ नहीं है. भूत कुछ नहीं होते. पूरा सब वहम है. चोरी वोरी कुछ नहीं होती है. आपके दिमाग में चल रहा है ये. बिकॉज बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया था. एंड
ये शायद गलत भी है, मैं ऐसा बोल रही हूँ, वो मेरा कभी कुछ नहीं चुराती। ईमानदारी। एंड मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं थी, जब भी वो आ रही है मेरे गेस्ट का चुरा रही है, तुम खुले पैसे क्यों ला रहे हो, Yeah. इतना ज्यादा कैश तो होना भी नहीं चाहिए, कैश को छुपा के लाओ, कैश क्यों ला रहे हो। ऐसा करके बहुत लोगों के, इस रूम में जितने भी लोग हैं उन सबके पैसे चोरी हुए हैं। मैंने उनसे माफ़ी भी मांगी है, मुझे बुरा भी लगा है, बट मुझे लगा है कि अंडा भुर्जी जो ये बनाती है वो कोई नहीं बना सकता। Correct. तो आई वॉन्ट टू गिव her flowers, and with that if she takes a little bit of people's money and ration, I'm okay with that. Yeah. Then last month she took my earrings. Oh no. It was like a really good time because मेरे दोस्त जब भी मुझे घर आते थे वो मुझे बोलते थे कि कुशा we have to fire her just on just this grounds कि कुछ भी कर सकती है, you know, your food and everything is, वो कुछ भी कर सकती है ना। I'm like वो नहीं करेगी, मैं उसको रिफॉर्म कर रही हूँ, और अगर तुम्हें नहीं रियलाइज हो रहा कि वो रिफॉर्म, मैंने कहा वो रिफॉर्म हो रही है। वी वर नॉट ऑलवेज द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स, हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मैंने कहा मैं कितनी घनघोर पिकमी थी। मैं अपने अभी फेसबुक के स्टेटस देखती हूँ, मैं रेड लिपस्टिक लगाने वाली लड़कियों के अगेंस्ट जो मैंने एकदम टायरेट में मैंने जो करा हुआ है एक पूरा, इट वॉज वेरी बैड। तो मैंने कहा हम सब कैसे से थे तो क्या हो गया यार, मतलब इट्स ओके, इतना थोड़ा बहुत इट्स फाइन, इट्स दैट लिटिल ऑयल इन द मशीनरी। मीठी मीठी इज़ फाइन, मीठी मीठी इधर उधर चीज़ें करना इज़ फाइन। थोड़ा चिकन ले गई तो क्या हुआ, 1 किलो चिकन का मैं क्या करूँगी, Exactly. आधा किलो वहाँ चला जाएगा। बट द इयरिंग्स व्हेन शी टुक इट अवे, देन आई वाज लाइक ओह नाउ आई रियलाइज व्हाट एवरीवन हैज बीन फीलिंग, बिकॉज़ यू नो मेरा सामान तो कभी गया नहीं। Who could have seen it coming? बहुत मुश्किल था मेरे लिए इस अडल्टहुड में वो रिश्ते को ख़त्म करना, बहुत मुश्किल था। मैंने फ़ोन पे उसके साथ ब्रेकअप किया है, एंड शी सेड ठीक है नहीं आऊँगी, Oh no. एंड Yeah. that hurt me too much because I was like you didn't even fight for us. तूने हमसे लड़ाई, हम बहनें थी यार, you were like my one half. जब तेरे हस्बैंड इश्यूज थे मैं तेरे साथ खड़ी थी, मेरे हर इशू में तू मेरे साथ रही है, you've seen me cry. So yeah, it was one of those, I'm navigating it and it's very tough. It's Yeah. very Sorry, tough. you That's had the to go reason I through was late today because yeah. आप बताएं पहले आप कैसी थी कॉलेज में दोनों? हाँ, मैं तो बहुत शांत थी। मैं स्कूल के ट्रॉमा से आई थी, तो मैं स्कूल में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी एंड ऑल टीचर्स हेटेड मी बिकॉज दे वर लाइक वो कॉन्फिडेंस ऑन अ गर्ल, उतारो इसके कपड़े, अभी उतारो इसके। एंड कॉलेज आके मुझे ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल दूसरा इंसान ही बन सकती हूँ ना। सो आई स्टॉप टॉकिंग टू पीपल। आई हैड 2-3 फ्रेंड्स एंड पहले साल तो मैंने कुछ ज़्यादा बोला नहीं, और वही कर रही थी यार कॉलेज में जो स्कूल में किया था, डिबेट्स, एलिक्यूशंस। बट या मुंबई वाज रियली फन, तो मुंबई में मैंने काफ़ी दोस्त बनाए, चिल किया। सो आई हैड अ ग्रेट कॉलेज एक्सपीरियंस। हाउ वाज योर्स? मेरा थोड़ा सा इनिशियली, बिकॉज मैं पहले इंग्लिश लिटरेचर करने गई थी आईपी कॉलेज फॉर वुमेन दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उसी साल एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस हुआ था। फ्लेक्स कर रही हूँ, मैंने क्लियर किया था एंट्रेंस एग्जाम। दैट्स द ओनली रीजन आई एम गिविंग दिस। It is flex worthy though. They're damn tough. Yeah, they were very tough. So I think initially the girls who come to English literature are extremely, I would say a huge percentage of them are, I would say, come from elite schools also. Yes. Yeah. तो जैसे 1-2 बार कुछ ऐसा हुआ था, मैंने बहुत पहले किसी पॉडकास्ट में बोला था कि कुछ एक लड़की ने बात करी और उसने बोला that's something Ross would say, and I was like Ross कौन है भाई? कौन Ross? Friends कौन वाला Ross? वही बोला मैंने भी, पर उन्होंने मुझसे फिर बात ही नहीं करी उसके बाद। तो मुझे रियलाइज हुआ कि तुम जहाँ से आ रही हो थोड़ा छुपाना पड़ेगा, ये इनको नहीं बता सकते कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता कल्चर के बारे में, पॉप कल्चर के बारे में। Yeah. तुमने एक अंग्रेजी बैंड नहीं सुना हुआ, तुमने कोई शो नहीं देखा हुआ, शो के नाम पे तुमने सिर्फ स्मॉल वंडर कभी कभी देखा हुआ है, या फिर एक मैंने द ओसी देखा था, बस उसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा था। तो मुझे नहीं पता था। मुझे अभी I could frame English sentences very well, and that was not a flex enough. तो क्लास में तो मैं काफ़ी I would say I tried to participate. This one time मैंने अपने सीनियर से नोट्स ले लिए और उसमें लिटरेरी स्टडीज़ के लिए कुछ तो हमें किसी बात की, किसी रेवोल्यूशन की कोई तो हिस्ट्री पढ़नी थी। अब मैंने वो 3-4 नोट्स ऐसे ही पढ़े थे, तो मुझे लगा यहाँ पर भी चलेगा वो स्कूल वाला कॉन्फिडेंस, अनचेक्ड कॉन्फिडेंस, कुछ भी बोल दो। तो मैंने कुछ खिचड़ी बना के, मैम दिस हैपेंड एंड दैट एंड दैट एंड ब्रास वर बर्न्ड एंड देन शी वाज लाइक
that was so vague. Whatever you said, it was so vague, and I don't know why you felt the need to like say that. And I said, and then I realized कि ये जो ये हो रहा है ना, इससे बाहर रहते हैं, हम करेंगे ड्रामसॉक ज्वाइन. वहाँ पर मुझे अपना थोड़ा वजूद मिला, आप कह सकते हैं, क्योंकि वो 2:30 बजे के बाद शुरू होता है. 2:30 बजे तक कॉलेज, 2:30 बजे के बाद 5:30 बजे तक मैले होकर ग्राउंड में लेटो लपोटो, कोई फर्क नहीं पड़ता. यू आर योर मोस्ट फ्री सेल्फ. दे मेकिंग यू डू वॉइस एक्सरसाइजेज. आप किसी के ऊपर पुल बन के चढ़ गए. मैं तो एक बार डैम बनी थी. यू नो, मैं वो डैम बनना मेरे लिए ज़िंदगी में सबसे असेंशियल था. 1 साल मेरी अटेंडेंस कम, और आपको पता है यूनिवर्सिटी में कम अटेंडेंस का मतलब आप नहीं जा सकते दूसरे साल में. आपको दूसरे साल में वो पूरी करनी पड़ती है. और आज मैं तो डैम बनने ही आई हूँ, मैं डैम बन के रहूँगी. हम डैम का क्या होता था, 2 लड़कियाँ ऐसे, उस पर एक लड़की बैठी है, फिर ऊपर एक लड़की चुन्नी लेके खड़ी है, वो रिवर है. तो पहले साल हाँ मुझे एक नुक्कड़ नाटक का पार्ट बनने का मौका मिल गया था, जिसका नाम था जो विस्थापन पर था. गलती किसकी दिखा कि देश चला प्रगति के पथ पर, विस्थापन का क्या ये चक्कर. बस मैंने कहा मैं इस दुनिया में जन्मी हूँ विस्थापन के लिए भाई. मैं हर चीज़, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ट्रिगर वार्निंग, फार्मास्यूसाइड, उसके बारे में, मतलब वी स्पोक अबाउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशूज़ एंड यू फेल्ट वेरी डीपली फॉर देम. तो मैं एक बार इनफैक्ट मुझे याद है जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा था, तो हम वहाँ पे अपना परफॉर्म करके आए थे. आई थिंक इट वाज अ फार्मर्स प्रोटेस्ट, और हम वहाँ पे अपना पूरा नुक्कड़ नाटक किया था. तो मुझे सिर्फ और सिर्फ उस वक्त थिएटर से मतलब था, वो 1 साल. What was yours like? I just was very depressed throughout the college because I think I had like such a traumatic experience in life in school that most of the college life for me was just a blur, at least the first year. Second year onwards, when I started getting therapy, I was like, oh wow, this is what being sane feels like. So I loved college fests. That was the only time I would come to college, I would care about anything. The rest of the time, I was just mentally checked out. But can we talk about college fests? Can we talk about why college fests were taken so seriously? कुछ आप कौन सी कमिटी में? भाई मैं NIFT, मैं बता देती हूँ, मैंने उसके बाद 1 साल ड्रॉप कर दिया था. अच्छा. एंड मैं चली गई थी NIFT बिकॉज मेरी दोस्त ने कहा कि प्रोफेशनल कोर्सेज वालों को ही जॉब मिल रही है. मैंने कहा तो प्रोफेशनल कोर्स ही करेंगे ऑब्वियसली. पहले साल मेरी NIFT में 700 रैंक आई थी, दूसरे साल थोड़ा पढ़ के 300 रैंक आ गई. दिल्ली मिल गया, लेदर डिज़ाइन, कोई मतलब नहीं. कोई मेरा ये एरिया नहीं था जिसमें मैं एक्सेल करती थी. मैं the only subject I truly excelled in was maybe English, and I have no idea why I went to NIFT. My art teacher would like be shocked that I chose that because he hated me. He used to call me Rusha Kusha Pusha, क्या टायर के माँ पे खाद बना रही है तू. So like he hated me. So I have no idea why I ended up in a design college. But I think I truly didn't know what I wanted to do at that age. To have that kind of a decision just like burden you that नहीं पता यार. अभी तो मम्मी पापा के चंगुल से छूटे हैं भाई. दुनिया देखी है, मेट्रो में पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं, किसी ने पहली बार बुक पकड़ लिया हमारा, अंकल से लड़ रहे हैं. एक अंकल ने मेरी फ्रेंड, एक ना बुड्ढे से अंकल, इतने मरे हुए. ठीक है, इट्स ऑलवेज द मरा हुआ. हाँ, अधमरा. सो खड़े हुए, और मैं खड़ी हूँ ब्लैक टॉप ग्रीन स्कर्ट, मुझे याद है, एंड कुछ दिख भी नहीं रहा है. स्कर्ट में इतनी सी टांगे दिख रही हैं मेरी. Enough for them. ऐसे आए ऐसे, ये कैमरा के पास. मैंने कहा इधर आइए अंकल, इधर आइए. ये बुड्ढा मेरी फोटो खींचने. Everybody came, snatched the phone from him and be like, dude, he had such strategic pictures of me, of my neck, on my waist, on my like, I'm like, you do this every day. I'm sure you do this every day. So there were very many stories like this at the metro station. So I think at that point also knowing what you have to do in life is too much. I feel you're adulting for the first time. Yeah. But I love the US culture of like schools that for 3 years or 4 years after the school you have to go to a college that is general college. Correct. You studied humanities, you community, everything, and then you decide whether you want to do medical, law. Like at 22 you have to make a decision. मैं तो सीतापुर से आई थी. सीतापुर में
करियर काउंसलर के नाम पर मेरा प्रिंसिपल था जो कहता था सैलरी इतनी कम है कि उसको 2 जॉब करने पड़ रहे हैं। मेरे पापा ने कहा कि क्या पढ़ाएं इसको। एक तो पापा को भी नहीं लग रहा कि लखनऊ ले जाओ यार बच्चे को, कुछ तो इसका अकाउंट्स अच्छी है, इसको अकाउंट्स में डाल दीजिए। उन्होंने कहा कि मेरी लाइफ का एम अब से है कि मैं डीयू में एडमिशन कैसे लूँगी, और मैंने 3-4 साल सिर्फ और सिर्फ डीयू में एडमिशन के लिए काम किया है। आई गॉट इन टू LSR, और मेरे घर वालों ने बोला कि जाके हिंदी BA कर लो। और उस समय ऐसा लगता था मेरी शान के खिलाफ है हिंदी बोलना या पढ़ना। आई एम वेरी गुड एट इट, बट आई डोंट वांट टू एडमिट इट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी कि मैं हिंदी पढ़ने जा रही हूँ। एटलीस्ट BA इंग्लिश तो हो। और LSR की कट ऑफ 4% ऊपर थी BA इंग्लिश की। तो कैसे कैसे मैं वहाँ गई पढ़ने के लिए। 1 महीने के अंदर मुझे रियलाइज़ हो गया दिल्ली इज़ नॉट फॉर मी एट ऑल। और मेरी मम्मी मुंबई की थी, तो आई वाज जस्ट लाइक मैं नानी के घर चिल करने आई, और यहाँ पे किसी को नहीं पता था DU क्या होता है। और अब मुझे पता चल रहा है यहाँ पे लिटरेसी ही इतनी कम है। उन्हें मतलब ही नहीं है कॉलेज से, उनको ये है कि 18 साल में सबसे पहली नौकरी मिल सकती है, कौन सी मिल सकती है। सो यहाँ पर आके दोस्तों के इन्फ्लुएंस में, बिल्डिंग फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में, मैंने सुमैया में एडमिशन ले लिया इन बैचलर्स इन अकाउंटिंग एंड फिनेंस। और 3 साल मैंने सिर्फ वो किया है। और फेस्ट वगैरह जो तुम लोग हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ लिटरेरी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती थी, बिकॉज समहाउ आई यूज्ड टू फील कि ये डांस वांस थोड़ी करूँगी मैं। मुझे ऐसा लगता था मैं स्मार्ट वाली चीज़ें करूँगी, आगे जाके इन सबसे ज़्यादा पैकेज उठाऊँगी। सब बच्चे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर रहे हैं और मैं यहाँ पर बैठ के ये कर रही हूँ। How was your college का फेस्ट एंड ऑल एक्सपीरियंस? भाई मैं तो बहुत सीरियसली लेती थी कॉलेज फेस्ट में, एंड आई वाज वन ऑफ दोस वेरी कम्पिटिटिव अग्रेसिव पीपल, एंड पीपल आल्सो समबडी केम एंड टोल्ड मी इट्स लाइक पागमिता चिल। आई वाज लाइक नो इट्स नॉट चिल, हम सेकंड कैसे आ सकते हैं? Obviously, मैं I 3 agree with महीने you. से प्रैक्टिस करवा रही हूँ तुमको, हम सेकंड कैसे आ सकते हैं? तो वी हैड लाइक 2 कमिटीज, एक होती थी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी और एक होती थी परफॉर्मेंस कमिटी। तो इट जस्ट हैपेंड दैट अ लॉट ऑफ योर फ्रेंड्स वुड बी इन द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, और ऐसा होता था कि अगर हम सेकंड आए या थर्ड आए तो हमें लगता था ये हमें जिताना नहीं चाहते हैं, इनको जय हिंद के लड़के हॉट लगते हैं, इसीलिए इन्होंने जय हिंद। Quite तो possible. मैंने अपने दोस्तों से 3-3, 4-4 महीने बात नहीं की है, क्योंकि आई हैव हेल्ड इट अगेंस्ट देम दैट आई हैव नॉट वन। Like I was one of those annoying ass people. But what was your What's college your sun fest? sign? Leo. Checks out. I'm a Virgo and I really appreciate that behavior. I think अगर आप college fest को seriously नहीं ले रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए आपको। Reevaluate your life. Because वो एक किरण है आपकी जिंदगी में जहाँ पर आपको थोड़ी सी कुछ सूरज, कुछ सुंदरता, कुछ आपको मजे आएंगे, जॉय। अच्छा तुम तो गर्ल्स कॉलेज मैं में तो थी ना? गर्ल्स कॉलेज में थी यार। तो वो बिल्कुल इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जब IP कॉलेज फॉर वुमेन जब उसमें थी, तो कोई भी फेस्ट अगर वेंकटेश्वर कॉलेज में हो रहा है या फिर हिंदू में हो रहा है तो हम एक्साइट तो होते ही थे ना। उस दिन अपनी आईब्रोज बना के जाते थे हम, तो इट्स ओके। लेग्स वैक्स करके जाते थे जस्ट इन केस, यू नेवर नो। मेरे फेसबुक पे अगर आप मेरे कॉलेज के अगर सिर्फ स्टेटस पढ़ेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ प्यार के बारे में, क्योंकि मुझे मिला नहीं था। तो मैं बस if I see another couple in love, I swear I'm going to, like it used to be like so dramatic. बट मेरे कॉलेज का फेस्ट होता था NIFT में स्पेक्ट्रम में क्या होता था कि हर डिपार्टमेंट को अपना फैशन शो करने को मिलता था, और उस फैशन शो में 3 लोगों को मिलकर एक गारमेंट बनाने को मिलता था, और फिर एक विनर अनाउंस होता था। तो सबसे पहले तो आए हॉट मॉडल्स, यू नो, बिकॉज एंड द थिंग इज हमने चूज किया मेंस वेयर। तो मुझे ये बहुत ज़रूरी था कि अच्छा गारमेंट बने ना बने, अच्छा ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें 3 में से 2 लोग तो टैलेंटेड हों। करेक्ट। तो मैं नहीं थी, तो 2 लोग जो थे वो बहुत मेहनती, पागल, जीतने के बारे में पागल। तो मैं उनको बस फ्यूल करती थी कि जीतना है एंड फुल सपोर्ट, एंड जो करना है करो, जो मन में आए करो। एंड दे मेड दिस वेरी ब्यूटिफुल गारमेंट विच वाज शोकेस्ड ऑन अ वेरी ब्यूटिफुल मॉडल, एंड वॉक किया, सब किया। वी वर ऑल वेरी एक्साइटेड, बहुत ही अमेजिंग टाइम था, एंड वी एक्चुअली वन। बट दैट्स नॉट द स्टोरी। द स्टोरी इज कि उसके बाद हम गए घूमने, क्योंकि हम सेलिब्रेट करना चाहते थे आफ्टर स्पेक्ट्रम कि हम जीते हैं। हम गए GK में अर्बन पेंट। तो उसी स्पेक्ट्रम पे बहुत सारे ऐसे हॉट मॉडल्स आए थे, उसमें से 2 लड़के
I want to like not tell enough about him and just like tell ताकि काफी vaguely बात करूँ मैं उनके बारे में. क्योंकि बहुत लोग हैं जो ढूंढ लेंगे. ढूंढ लेंगे भाई, मेरी सारी स्टोरी में सबको ढूंढ लेते हैं. 2 लड़के आए जो भाई थे, ठीक है. That's all I think we need to know about them. I don't want to talk about That their is enough background, description for the anything. finders. And they were very hot, and they were very like good looking, and everybody was excited. So anytime any girl was passing them, they were like full giggle was happening. तो हम अर्बन पिंड गए, which was our best place to go to in GK. I think तुम लोगों को नहीं पता होगा अर्बन पिंड, because ये बहुत वक्त पहले की बात है. एंड वहाँ पे वहाँ पे अल्कोहल फ्री मिलती थी, which is the reason all of us would just flock there, girls night. हाँ, girls Oh night. yeah. Great offers. So हम सब लोग मस्ती कर रहे हैं, जीते हैं, we're like having the best time of our lives, and then suddenly I spot one of the brothers who was the model, and I was just very like, I was like a fatty, enthusiastic gal who any kind of like, even like, I'm not saying even validation, any kind of just acknowledgement. Hi, you want to talk to me? Yes, I'll come to you. Hey, hi. And he's like, come here. And I said, I'll come. Yeah, it's it. Probably Honey Singh का गाना चल रहा होगा background में, सब खुश थे. And then he's like, give me your hand. I said, my hand? Why? He's like, give me your hand. Safe space, आसपास लड़कियाँ थी, कुछ भी ऐसा creepy नहीं था. So I said, hand. And he's like, and he places a gun on my hand. Now, I don't know if it was a real gun or a toy gun, but mind you, I was in GK in Delhi. You know, it could have been anything. Yes. And then he puts the gun and then he puts his hand on top of this like that. And he's like, can you feel the weight? And I said, I can. And मैंने अपना हाथ ऐसे खींचा, मैंने कहा see you, ये मैंने अपनी 15-20 लड़कियां जो थी मैंने इकट्ठा किया, मैंने कहा निकलो यहाँ से, the party is over. That's how I left. Only in Delhi, I guess. I feel like, I don't know if only in Delhi, but if in Delhi, run. Yeah. In Mumbai, you would still be like, I don't think it will happen in Mumbai. Toy gun hogi or whatever. I think he was just doing that. Some girls were actually getting excited with that, but I was like, ये गोली की बुलेट तो मेरे में ही लगनी है, तो मैं भागती हूँ यहाँ से. मुझे हेडलाइन में ऐसे तो नहीं आना है. नहीं. And I was like, आज ही जीते हैं यार, आज ही जीते हैं, आज मम्मी को बताऊंगी कुछ जीती हूँ मैंने ऐसे में. But you know, it's so funny because I literally called my friend yesterday, and I was like, do you remember that? And she's like, bro, what the fuck was happening? What were those times? So I have like very many stories like that, and a lot of them involve like guns, like our safety being compromised. But that is the crux of being a college girl. कि आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या मैं इससे जिंदा बाहर निकलूंगी, क्या इससे अच्छी स्टोरी बनेगी. At 18, I have gone to places I wouldn't today go with a gun. मैं 5 बेडरूम में 10 लड़के रह रहे हैं. क्या कर रही हूँ मैं उस वॉक इन करके कि इन 5 लड़कों में इन्होंने कभी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी होगी. स्किन टाइट जीन्स पहनी है, इनफिटेड टॉप My mother praying for my safety at home. Meanwhile me. It's like that short story Cat Person जो बहुत famous हुई थी, and उसमें she was stuck with this one guy, okay, who she kind of like seduced him into that final moment where they would like have sex, and then right when they're having sex she decides she does not want to have it. Right. And मुझे याद है उसमें recently पढ़ी अभी दोबारा, and उसमें there was a moment when she was like, I'm not into it. And you know how she then like tricked her mind into getting turned on was, he must be feeling so great to be with such a young, beautiful person. Yeah. And that feeling was like turning her on. Yeah. It reminds me of that. Honestly, it's never about the other person. It's about मेरी पहली feeling है ये, मेरा पहला experience है मैं ये. अपने घर से भाग छूटी हूँ और मुझे अपने कंधे के पीछे देख के देखना नहीं पड़ रहा कि मेरे चाचा जी तो नहीं आ गए, कहीं मेरे सुट्टा फूकते हुए कोई देख तो नहीं लेगा. 100%. You did not. You were in Delhi only, ना? I was in Delhi. How did you handle the first wind of independence? कि oh, यहाँ पापा नहीं है 8-10 घंटे के लिए. बिगड़ैल मैं तो फिर हाथ ही नहीं आई अपने माँ बाप के दोबारा. मैं आई थिंक उसके बाद आई थिंक माई पेरेंट्स वर ऑल्सो लाइक ये गई अब. इट्स ऑफ
course they've come to terms with who I am today and they Yeah. really support me. But there was no coming back from there because एक तो ना मुझे अपने प्रिविलेज का बहुत एहसास हुआ NIFT जाके. जैसे मुझे पहले लगता था कि हम ठीक ठाक फैमिली से आते हैं बिकॉज पेरेंट्स कभी अपनी आप समझ नहीं पाते. पता है प्रिविलेज के मायने जब आप एक घर में रहते हैं, आप एक क्लोज इन्वायरमेंट में हैं, कुछ चीज़ों के लिए हमारे पास पैसे हैं, कुछ चीज़ों के लिए नहीं है. 7th क्लास तक पापा ट्रिप पे लेके जाएंगे, 7th के बाद नहीं लेके जाएंगे. सो you don't really question those things if something major is not happening in the house. बट जब मैं NIFT गई और मैंने देखा कि कितने बच्चे रिजर्वेशन से आए हैं, कितने बच्चों को स्टेशनरी लेने के लिए लोन लेना पड़ रहा है, कितने बच्चे मेहनत कर रहे हैं, दे वर्किंग 3 jobs 2 jobs जस्ट टू बी हियर. पहले तो अपने प्रिविलेज का एहसास बहुत ज़्यादा हुआ. तो पहले तो वो रियलाइजेशन बहुत बड़ी थी. तो फिर उसके बाद हुआ कि जब भी इसका तो फुल इस्तेमाल करेंगे जितना भी है, वो इंडिपेंडेंस भी ऐसी लगी कि यू रियली sitting pretty much at the top here. However uncomfortable that might sound, it is true. So it wasn't like we didn't interact with everybody, like everybody didn't interact with each other. We were all in the same class, but somehow similar people with similar backgrounds kind of became friends. Correct. Wish things were not like that. And I think everybody just felt more comfortable that way. So I was with a group of girls who came from similar families like mine. They were not as diverse as I would have liked. And even though we did speak with everybody, we were all friends, we were in the same batch, our interests were very similar with the kind of friends I ended up making. So our independence was mostly eating really unhealthy food and then getting high on it. तो एक कोई Chinese van थी जहाँ पे honey chili potatoes मिलते थे. They were as red as like a freshly blooming like a rose or something. And वो हमें पता था कि हम सिंथेटिक खा रहे हैं. हम एक्चुअली हम फूड कलरिंग खा रहे हैं, हम तला हुआ फूड कलरिंग खा रहे हैं. बट हम उसी के पास जाते थे, हम उसी के पास पहुंचते थे. एंड दैट इज़ द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड कि व्हाट एसिडिटी इज, बिकॉज उससे पहले मुझे कभी हुई नहीं थी. एक बार मैंने बहुत सारा हनी चिली पोटैटो खा लिया. आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट वी डिड विद आवर इंडिपेंडेंस. आई एम सो सॉरी, आई विश वी डिड समथिंग नोबल बट वी डिडंट. आई डिडंट. ऑल ऑफ अस. हम हनी चिली पोटैटो खाने जाते थे. कॉलेज कैंटीन का खाना बहुत ही वाहियात होता था. बहुत आपके गंदा. पास और कोई ऑप्शन नहीं होता था. मैंने 10 रुपए की चाइनीज भेल वाज माय फेवरेट स्पोर्ट. भाई मेरे कॉलेज के पास में there was this joint called Mao, okay, and it was a Chinese joint जहाँ पे कैप्सा मिलता था. Capsa is basically red gravy, this color. Exactly this color gravy with chicken, and उसके ऊपर covering of rice also red. And there were 3 pieces and 4 people. So always one person had to sacrifice. And it was the most unhealthiest. Like one day after like few years of college, we decided कि हम memories relive करते हैं. हम चलते हैं सेम स्पॉट्स पे. तो सबसे पहले तो हम गए उस शेडी बार में जहाँ हमें सस्ती दारू, सस्ती, बाय द वे ओल्ड मॉन्क का मुझे जो स्मेल अभी भी विफ आ जाती है ना, मैं बेहोशी की हालत में हो जाती हूँ. क्योंकि मुझे इतने गंदे पल मैंने बताया ना ओल्ड मॉन्क के साथ में, जो सस्ती ओल्ड मॉन्क का पौवा आता था. अरे एवरीबॉडी, इट्स अ कोर एक्सपीरियंस. तो हम पहले गए उस बार में सबसे पहले तो उन्होंने जब लाइट ऑन की तो मुझे दिखा नीचे जमीन कैसी दिखती है. तो मैं बार में नहीं घुस पाई. उसके बाद फिर हम गए वो कैप्सा वाली जगह पे, और फिर कैप्सा वाली जगह पे लाइक यू सेड मुझे हो गई एसिडिटी. तो मुझे रियलाइज हुआ कि आपकी कॉलेज की बॉडी जो होती है ना, वो भी बहुत जरूरी होती है, नॉट जस्ट द माइंडसेट. Yes, and your friends should be there for you when you're going through it. Your worst drunk story from college, where you've got very very badly drunk. So, I think हम बैंगलोर जब गए थे, तो बेसिकली वैसे बात कर रही हूँ कि हम पास में जानते थे एक दूसरे को. साथ में तो गए थे, बीच में साथ में गए थे. We went to Bangalore for some internship at some leather export house. But it's not even like my worst drunk story because हम उस टाइम पे हम एक रोड है रिचमंड रोड करके वहाँ रहते थे. एंड हम 3 लड़कियाँ थी और हम सिर्फ ये देखने जाते थे कि लेडीज़ नाइट कहाँ पर है, क्योंकि हम बहुत एक्साइटेड थे. और बैंगलोर का खाना, वाइब, इट फेल्ट वेरी सेफ. एंड समहाउ हमने जो फ्लैट रेंट किया था उसी के साथ में कुछ एक ग्रुप रहता था जो ऑरोविल से था. सो दे वर लाइक वी आर फॉर्मर ऑरोविलियंस.
So I was like, what are you saying? And then What does that mean? and उनके पास एक husky था, and I was like, wow, what is this word? Labrador है क्या? इतना सुंदर husky भाई. I was like, and the thing was कि उन्होंने actually हमें अपना सारा जितना भी कूल म्यूजिक है उन्होंने सुनाया था. मतलब आई थिंक पिंक फ्लॉयड पहली बार उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे सुनना होता है. और ऐसे एक नितिन सहानी करके आर्टिस्ट है जो मतलब मैं सुन के मैंने पता नहीं और 200 लोगों को सुनाया है, बोल के कि मैंने डिस्कवर किया है आर्टिस्ट. तो तभी हमें आई थिंक कुछ स्काई करके बाहर गए थे जहाँ पर हमने बियर पिया. उस दिन आई थिंक आई हैड क्लोज टू 7-8 like glasses of beer, but there was nothing bad about it. Somehow like with my friends I've always been surrounded in an environment where it's always ended up being really fun, but there's not really a bad story. I think I would have had more bad stories if I'd continued drinking after 26-27. Oh yeah. Yeah. But Yeah. then once I Yeah. got TB I stopped drinking, and then I just never went back to that thing. I think 25-26 के बाद आपकी You don't एसिडिटी ही miss नहीं it अलाउ also. करती. हाँ, है, मुझे वो ड्रिंकिंग एक्सपीरियंस कॉलेज का ही होता है जब Yeah. आप बहुत ज्यादा ड्रंक है खार सोशल के वॉशरूम LIT पी के खार सोशल के वॉशरूम में, और आपकी दोस्त आपको बोल रही है इट्स ओके वाग्मिता, इट्स ओके, जस्ट गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम, इट्स ओके बेब, डोंट वरी. ये this the ultimate. यार LIT पी है मैंने किसी की LIT में उल्टी भी करी है. It is, I wish it didn't happen, you know, but it did. और मैंने मेरी नानी के घर, so my brother and I used to live at my nanny's house during college because Bombay is expensive. तो तुमने क्वाइटली उल्टी की होगी. नहीं कि यार, सुनाई नहीं दे. नहीं, मैं आई बढ़िया दारू वारू पी के टाइट होकर 9-9:30 बजे घर पहुंची हूँ अपना कर्फ्यू के बिल्कुल पास्ट. और मेरी नानी इज अ बॉम्बे पर्सन. शी इज लाइक तेरा बाप फोन करेगा जब तो फोन उठा के तू जवाब देगी. मैंने कहा नहीं मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो मस्ती करके आई हूँ, आ तो गई हूँ. मेरी नानी पता है किचन तक का मेरे लिए खाना लेने गई, और जब वो वापस आई है वहाँ फूल ऑफ नानी हैज डेल्ट विद अल्कोहलिक्स. मेरे माँ बाप, मेरे नाना, शी कैन टेल ये बदहजमी वाली you know, I admire the grit of that woman so much because she was like, AK में ओल्ड मॉन्क पी के आई है तू. How did she? She just lived with alcoholics all her life. She judged you for the old monk part. But Mumbai alcohol is so expensive. And shit. It's so expensive that आप absolute के प्राइस पे अगर ओल्ड मॉन्क ही पी सकते हो तो आप क्या करोगे, पियोगे ही. I decided I didn't want to drink here and then I went to Delhi for a year. वहाँ पे मैंने बढ़िया दारू पिया दबा के. भाई रॉयल स्टैग 900 रुपए क्रेजी. मुझे मैजिक मोमेंट्स अभी तक देख के थोड़ा ऐसा हो जाता है कि बट दिस Heartburn. वन टाइम आई वेंट इन कॉलेज, आई डिस्कवर्ड टकीला फॉर द फर्स्ट टाइम. मैंने कभी टकीला नहीं पी थी और मुझे लगा कि ये तो पीनी पड़ेगी. तो एंड इट वाज समवन एल्सेस बर्थडे, सो दे वर बाइंग द अल्कोहल, एंड इफ समवन एल्स इज बाइंग यू अल्कोहल यू जस्ट ड्रिंक व्हाटएवर द फक इट इज. तो मैंने 3 शॉट्स पिए पहले, मुझे कुछ नहीं हुआ. फिर मैंने 3 और पिए, फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ. फिर मैंने 3 और पिए, तब मुझे थोड़ा टिप्सी लगा. तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही क्या है, व्हाई डू पीपल मेक सच अ बिग डील अबाउट टकीला, इट्स फाइन, लाइक व्हाट इज सो बिग डील. तो फिर मैंने एक और आधा शॉट पी के एंड आई रियलाइज कि मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है. तो फिर मैं उसी टाइम विदाउट सेइंग बाय टू एनीवन मैं ऑटो में जाके चली गई घर कि इससे पहले मुझे भी कुछ हो जाए, मैं घर पहुंचना चाहती हूँ. I do this all the time, by the way. Anytime I feel like beyond this moment, मुझे घर जाना है. because I think at home you would be safe. और उस टाइम के ब्यूटी ऑफ दैट टाइम बॉम्बे इज द फैक्ट दैट आई रीच्ड होम सेफली. ऑटो वाला काफी मुझे घर के दरवाजे तक छोड़ के आया बेचारा, वो बहुत नेक बंदा था. और फिर एज इट हैपेंस विद विमेन कि आप घर आ गए हो बट आई हैव टू बी क्लीन बिफोर बेड. आई हैव टू हेड टू टो बी क्लीन. आई कांट गो टू बेड व्हेन आई एम डर्टी. तो मैं नहा रही हूँ और नहाते फिर मुझे लगा मैं बॉडी लोशन भी लगा लेती हूँ. तो मैं बॉडी लोशन लगाते मैं गिरी हूँ और फिर मैं उठ गई. एंड मेरे दिमाग में 1 सेकंड के लिए थॉट आया दैट आई एम सो फक्ड टुमारो. आई डोंट नो व्हाई आई थॉट दैट. आई जस्ट थॉट दैट आई हैव गॉन टू स्लीप एंड इन द मॉर्निंग आई हैव वोकन अप एंड आई एम लाइक आई डोंट फील सो बैड, आई एम ओके, लाइक क्रेजी. आई ओपन द बाथरूम डोर,
the wash basin and the commode are on the floor. क्योंकि मैं उसके ऊपर गिरी और नीचे गिर के बिखर गए, चूर चूर हो गए वो. It's the blackout. The blackouts really. What are you And that is why I remember thinking I'm so fucked because I had to call my brother and be like, हमें कमोड वाले को बुलाना पड़ेगा कमोड लगाने के. वॉश बेसिन तो एक बार झूल के मैंने भी तोड़ा है. You weren't hurt at all? No. Dude, that's insane. Because Not people a end up bruise. getting hurt a lot Yeah. when there's a blackout. वो मुझे बस- कभी नहीं हुआ. I think you're very, very lucky. Blackouts are the absolute worst. I think Yeah. knowing the moment it's going to turn into a blackout is very, very important. Yeah, so College के time पे if there is a heartbreak going and then you're drinking, that's tell us the about that. worst. Tell us about that. I think my worst night, because you asked me about it, तो I was just like thinking कि कौन सी थी मेरी. My worst night was when I think I was going through like a breakup. And मैं अपने कोई एक couple दोस्त के साथ बाहर पार्टी करने गई थी. And the person I was broken up with, they also ended up there. Oh damn. Worse. So then the shots kept happening. It was like ये भी ले लो, ये भी ले लो. Yeah. And then I think the people I was with, some 5-6 other people, they got to know that that person is there, so they are now overcompensating and making it look like I'm very happy and I'm taken care of. It was just bad, and I think at one point मैं एक टेबल पे बैठ के रो रही थी. And then like I think there were multiple times मैं अलग अलग टेबल पे जाके रोई हूँ कि मेरे साथ क्या हो गया, क्या चल रहा है, क्या. And my couple friend is having the time of their lives. They're at the peak of their romance. उनको मजे आ रहे हैं, वो आके मुझे और शॉट पे ला रहे हैं, वो खुशी में पी रहे हैं, मैं दुख में पी रही हूँ. फिर at the end of it मैं नीचे जाके बैठ गई और मैं वहाँ पे रोने लग गई अच्छे से. तो ने बोला क्या चल रहा है बॉस, घर चलते हैं. घर ही चलते हैं, कुछ रह नहीं गया है. So that's my worst night. But since I think a lot of times I was like the designated driver, तो मैं नहीं, मतलब मैं बहुत बार नहीं पीती थी, just because I had to get a lot of the girls you were the mom of the back group. home safe. What was so college? I think college life is known by the experiences which don't include studying, and one of At which all. is the canon event called college trips. Tell us about a college trip that is very close to your heart. वही मैं बोलना भी चाह रही थी कि अल्कोहल से ऊपर तो बहुत कुछ है ना. बीच है, Yeah. बीच है, और उसके बाद अलग अलग जगह जाना है, बस राइड है to Pondicherry. There is just so much to do. Yeah. And alcohol is like a bonus. Correct. Alcohol is like the quest is for alcohol. Yeah. It's like a treasure hunt. Yeah, everything else on the way now you see and you're like, wow, this was the real life. But उस समय Yeah. यहाँ पर तो कितनी मुश्किल से मिलती थी दारू यार. सस्ती कहाँ मिलेगी, which is why पहाड़गंज was the place. Everybody would end up there because सस्ती थी दारू वहाँ पर. But I think also people were just more excited about the quest. Yeah. इतनी पीते भी नहीं थे लोग, but just कि ढूंढने चलते हैं. दारू क्या, दारू का सीन क्या, दारू का सीन क्या, दारू का, बस बोलना अच्छा लगता था कि दारू 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 है ना, दारू है ना. I've had so we went to this we had this tannery training जो लेदर में एक tanneries पे जाते हैं आप. तो हम चेन्नई गए, same group of friends, we are all friends still, all of us. We go to चेन्नई में तिरुवनमयूर करके एक जगह थी, हम वहाँ पर रहते थे. हमने एक फ्लैट ले लिया था और 2 लोग जिनका लेदर डिजाइन से कोई मतलब भी नहीं था, वो उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया था बिकॉज ट्रिप, यू नो, दिस इज नेवर, इट्स नेवर अबाउट एजुकेशन. Yeah, of course it's not. वी आर स्ट्रीट स्मार्ट. सो उसमें क्या हुआ था कि पहले या दूसरे ही दिन ना हमें अपनी बिल्डिंग के अंदर एक लड़का दिख गया था. एंड यूजुअल उसके सामने से हम 3-4 लड़के ने ही हा हू करा, विच इज द गिगल ट्रेन, एंड देन वी passed him and then we went up to our respective homes or whatever. We spotted him a bunch of times. उसके बाद हम एक पौंडीचेरी के ट्रिप पे जाते हैं. 2 अलग अलग कहानियाँ हैं ये तो, बट कनेक्टेड है. हम पौंडीचेरी जाते हैं. पौंडीचेरी के लिए हम एक बस लेते हैं, ठीक है. पौंडीचेरी के लिए हम जब बस लेते हैं, पौंडीचेरी का ट्रिप बहुत अच्छा हुआ, सब हुआ. वापस भी हमें बस से आना है. अब हम जब वापस बस में आ रहे हैं, देयर आर अ बंच ऑफ मेन हु आर एब्सोल्यूट क्रीप्स एंड हु आर ड्रिंकिंग ऑन द बस. एंड ड्रिंकिंग लाइक ये उनका, अगर उनको एक पैग बनाना है तो ये रहा सोडा,
ये रही विस्की, सोडा, विस्की, and that's how they were having South it. Indian trademark. So, you know, we were like, this is gonna be very, very scary. Yeah. And then what they would do is, anytime there would be like silence in the bus, they would just go like, Singam, Singam, something they would sing. And we would be sleeping and we would wake up like this, ki, is that theek hai na? Is that theek hai na? It would be like that. And the thing is, they did that throughout the trip. And at one point, one of the women on the bus was like, आप अपने आप को कवर कर लीजिए. कुछ कवर करने को था, शॉर्ट्स में होगी शायद एक दो लड़कियाँ, आप तो हमने कवर ववर भी कर लिया अपने आप को. And they didn't stop. They just, and we didn't understand their language, so they were catcalling, eve teasing. In that we didn't even know कि वो हमको छेड़ रहे हैं, अपनी कोई पुरानी बातें कर रहे हैं, पर हम uncomfortable feel कर रहे थे. तो हम अपने बस स्टॉप से कुछ 2 स्टॉप पहले उतरे ताकि वो हमें फॉलो ना कर पाए. So now we have this fear already, okay? Now once we come back from Pondicherry, हम अपने घर वर में settle होते हैं, and that guy who we spotted on the first day, he comes and one of the guys in our group वो उससे मिलता है और उसको बोलता है कि hey, so how was Pondicherry? You had fun, you guys did massage and all. So when he said you guys did massage and all, my friend was like, ये थोड़ा सा weird चीज़ है पूछने की, why is he asking me that? So my friend took him to the terrace, they smoked one and then they left. So that we don't have to think about it, and we were anyway like no male energy around. Yeah. Next day was our train to leave. So half an hour later, I have to go. जो मशीन थी ना washing machine, वो घर के बाहर थी. मुझे कुछ अब कपड़े निकालने हैं उस washing machine से. मैं घर से बाहर निकलती हूँ, मैं washing machine खोलती हूँ, मैं उठाती हूँ और मैं ऐसे देखती हूँ. There's a corridor और corridor के वहाँ पे एक wall है और वहाँ से एक लड़का ऐसे करके ऐसे. Oh my God. And I'm like, someone's peeping! Hysteria. Absolute hysteria in the house. We are now 7-8 girls, 2 guys. We don't know what to do. And the thing is, I don't know if it's that guy. Till now, okay? So now everyone's speaking out. एक लड़की ने रोना शुरू कर दिया. एक लड़की ने 0% helpful. एक लड़की full ने panic. शब्द बोलनी शुरू कर दी. एक लड़की ने मेरे को कहा था तो तुम क्यों हंस रहे थे? तुम्हें एक हमारी दोस्त ने कॉटन उठा ली. मैं अटैक करूंगी. मैंने कहा तू कॉटन से कैसे अटैक करेगी? What's your game plan? Then we, throughout the night, in every half an hour interval, we hear him come close to the door and go back. Come close to the door, go back. So the one who was planning to attack him with cotton, इस बार knife लेकर आई क्योंकि उसको realize हुआ situation की gravity बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. At one point, he comes to our door and does. And the thing is, he's easily outnumbered. Yeah. हमारे पे 2 लड़के हैं, 7 लड़की हैं, हम बाहर जाने को क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हम वो इंसिडेंट ने इतना हमें डरा दिया था. And now we are figuring out कि कौन क्यों कर रहा है? We don't know who to call. We don't know any security guy number. हमें समझ नहीं आ रहा. हमें सुबह 6 बजे निकलना है. 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं. हमें ट्रेन के लिए निकलना है. हमें समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है. So then we waited for that guy to sit. We knew the car he was in. तो हमने देखा कि वो अपनी कार में बैठ गया है और चला गया है. Then when he went away, one guy was placed at the lift on our floor and one guy was placed at the lift on the ground floor. एक लड़की अपना बैग उठा के ऐसे करके नीचे गई है ऐसे. जबकि हम उसको दबोच सकते थे. But it's the psychological fear Yeah. that they create. But why did he do this? Yeah, to they us? wanted to create that. It's that It's psychological all, fear. yeah, it's also like वो उस टाइम पे डर ये होता है कि ये आदमी यहीं का है. हाँ. ये किसी को बुला लेगा तो. Yeah. Yeah. And you know, I still get goosebumps because I was the first one to spot him. तो फिर by the way हम सब एक weapon के साथ बाहर निकले थे. जो हमें घर में Cotton चीजें house मिली में कॉटन हमने मना कर दिया था. उस पे लड़ाई भी हो गई कि why is this more important right now? And I was like, but cotton is not making sense. तुम लोग हमेशा मुझे single out करते हो. What do you mean? मैंने कहा नहीं, but cotton का क्या sense है? ये तो बिल्कुल मोटी बुद्धि है तेरी. So उसमें बहुत सारे mini fights थे. उसमें
हमारी एक फ्रेंड एक टॉक्सिक लड़के के साथ भी थी, बहुत कुछ था उसमें, तो देयर वर मेनी लाइक अंडरटोन्स एंड अंडरलेयर्स टू दैट स्टोरी. That reminds me of this story. You know, I was not even thinking it, but since you mentioned harassment, Always a connected You know, spectrum. common place. मुझे कॉलेज हरासमेंट के पहले ब्रश से पता चला कि आपको सिर्फ कैट कॉलिंग ऐसे नहीं हो सकती है, जैसे घर पे अपने होम टाउन में जब होती है ना, तो ऐसा लगता है कि दिखाऊंगी तुझे मेरा बाप कौन है, पहले नंबर नोट करूंगी, फिर मेरे पापा कुछ नहीं करेंगे उस बारे में. वो बोलना तो है ना एक बार. हाँ, ऐसे कि साले तेरे को मेरा बाप बताए, ऐसे टाइप की बातें. और फिर मैं गई जयपुर, सेकेंड ईयर कॉलेज ट्रिप पे मैं गई जयपुर, और पूरा शहर बढ़िया से मैंने और चांदनी ने घूम लिया है कि चांदनी एंड आई आर स्टिल बेस्ट फ्रेंड्स फ्रॉम कॉलेज. तो हमने बढ़िया शहर वहर घूमा है, और 7-7:30 बजे के बाद कॉलेज ट्रिप में परमिशन नहीं होती थी बाहर जाने के लिए. तो किसी तरह से अपना पीरियड फेक वेक करके मैम से परमिशन लिए कि हम सामने वाला जो सीसीडी है उसमें हम लाटे पी कर आएंगे, बढ़िया जाएंगे. और मैम से बोला मैम मेरे पीरियड्स हैं, आई नीड दोज पैड्स. बेचारी मेरी मैम, उन्होंने कैसे कैसे परमिशन दिया कि अच्छा ठीक है, कम बैक विद इन हाफ एन आवर और व्हाटएवर. हम गए और हमने सोचा कि अब अगर फार्मेसी तो जाते ही हैं, पूछे कि पैड का है तो क्या बोलेंगे. हम गए और पूरी रोड खाली है. 7:30 दिसंबर जयपुर, पूरी रोड खाली है. एंड आई हैव ज़ीरो आइडिया, मैं घर से पहली बार 8 बजे के बाद विंटर्स में निकली हूँ बाय द वे. एंड हम फार्मेसी वापस आ रहे थे, वहाँ पर एक वाइट फॉर्चुनर निकली, उस पर ऐसे बढ़िया झंडा वंडा लगा हुआ है और एकदम टिंटेड ग्लासेस. वो निकले और उसने नीचे विंडो करके बोला, ऐसे हाई किया. और चांदनी इज़ अ बॉम्बे किड, तो चांदनी ने भी हाई कर दिया. उसे लगा इसके कोई रिप्रिकॉशंस नहीं होंगे. इट्स लाइक प्रेत आत्मा को मुड़ के मत देखो, वो पीछे चिपक जाती है. और मैंने बताया, मैं सीधा सीधा चलती रही. मैंने कहा ये बहुत ही गलत कर दिया चांदनी तूने. और उसने कहा क्या हो गया, यू आर वेरी रूड यार. मैंने कहा ठीक है. और वो लोग चले गए. वो लोग गए ऐसे 3 ये था, वो ऐसे गए और मुड़ के तुरंत वापस आ गए. और हम रोड पे चल रहे हैं और वो पीछे पीछे ऐसे चल रहे हैं, धीरे धीरे गाड़ी चला के. 2 लड़के उसको विंडो डाउन करके हमसे कह रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो. मैं कह रही चांदनी सामने देख भी मत, उनको देख भी मत. और हमारा 200 मीटर दूर होगा, सामने होटल दिख रहा है, इस तरफ सीसीडी है. और मैंने पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने गाड़ी रोक दी और मैंने चांदनी का हाथ पकड़ा. हम भाग भाग के सीसीडी गए और पूरा खाली कैफे. वहाँ पर एक मरियल सा बरिस्ता था, वो हमें भाई मैं उसे बचाने के लिए तत्पर थी. वो तो बेचारा क्या ही करता हमारे लिए. और उसकी भी फट गई होगी यार. फॉर्च्यूनर वगैरह देख के तो सबसे पहले यही होता है कि अब चप्पल उतारो, सिर पे डालो और भागो यहाँ से. हम अंदर गए और वो 2 लड़के बाहर निकले और हमसे कह रहे हैं आजा आजा, गाड़ी में आजा. एंड आई वाज जस्ट लाइक ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ये क्या हो रहा है हमारे साथ. मेरी फट गई पूरी तरह से. और एक अंकल रोड क्रॉस कर रहे थे, वो खाकी पैंट्स में थे, तो मुझे लगा पुलिस वाला है. तो मैं कह रही पुलिस पुलिस पुलिस, उसको बुला रही हूँ, वो सुन ही नहीं रहा. फिर मैंने कहा अंकल आप प्लीज़. अंकल ने कहा क्या हुआ क्या हुआ. मैंने कहा अंकल ऐसा ऐसा है, ये लड़के हमारा पीछा कर रहे हैं, आप हमें हमारे होटल तक ड्रॉप कर दिए, विच इज़ नाउ 100 मीटर्स अवे. रोड क्रॉस करके हम जैसे गए, उस गाड़ी से निकले 4 लड़के और हमें इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी हैं उन्होंने. मुंह पे गालियाँ दे रहे हैं ऐसे, मतलब आर वर्ड एंड ऑल दे आर सेइंग राइट टू आवर फेसेस. और टायर पे पैर मार रहे हैं कि साली निकल गई हाथ से एंड ऑल ऑफ दोस गंदी एकदम लैंग्वेज. और चांदनी इज फ्रोजन बिकॉज शी इज नेवर सीन दिस. मतलब उसकी तो ऐसे हो गई कि never coming back to north again. I get it, Soumya, now we're never making it here. और वो पता है वो अंकल, एक तो भाई आदमी की मैस्कुलिनिटी, वो हमसे कह रहे हैं मैं ना सीओ सिटी को जानता हूँ, मैं तो अभी पीओसी ये बना दूंगा, मैं तो अभी पुलिस बुला दूंगा. मैंने कहा अंकल आपका हम ईगो ब्रश करेंगे 2 मिनट बाद, आप पहले हमें ड्रॉप कर दो. हमें उन्होंने आगे जाके ड्रॉप किया है और ऊपर गए. हम वहाँ विंडो से देख रहे हो, मैं रोने लग गई. पता है मैं और चांदनी पहुंचे और हम रो रहे हैं. हमारी मैम पूछ रही है क्या हुआ ना, लाइक नथिंग मैम नथिंग मैम. उनको बताएंगे, वी ऑलवेज थॉट कि उनको बोलेंगे तो हमें ब्लेम करेगी कि क्यों गए थे. ऑब्वियसली हम विंडो से देख रहे हैं, वो लड़के 1.5-2 घंटे तक बाहर खड़े रहे वहीं पर. Checks out. And I was so scared. I was like, अगर ये प्रिंसिपल को पता, ये लड़के अगर अंदर आ गए, we were scared कि लड़के होटल में आ जाएंगे और तब इनका तो कुछ नहीं होगा. मेरी प्रिंसिपल हम दोनों को सस्पेंड कर देगी कि तुम लोग गए क्यों थे बाहर इस टाइम पर. बट या दैट हैपेंड. और मुझे उसके बाद हमने कभी नॉर्थ में ट्रिप नहीं ली.
अकेले? मुझे पहले लग रहा था मेरी भूत वाली स्टोरी स्कैरी है, नाउ द भूत पिशाच इज नॉट दैट स्कैरी एनीमोर, hard नॉट relate. स्कैरियर देन मेन. हार्ड रिलेट सो मच. उसको बोलना था ना कि तेरा ओरिएंटेशन है. थर्ड ईयर में पता है कॉलेज से इतना डर गए, हम अपनी ट्रिप पर गए थे. हाँ. 80 लोग मुंबई के डिफरेंट कॉलेजेस से हैव बैंडेड टुगेदर टू गो टू मनाली फॉर अ ट्रिप विद नो प्लान. 12,000 की ट्रिप थी ये, जिसमें हम गोल्डन टेम्पल मेल से गए थे स्लीपर क्लास. उतरे हैं वो लोगों ने, हमें कैसे तैसे भरा, 2 बस में कैसे तैसे करके भरे उन्होंने. हम वहाँ गए, बर्फ़ गिर रही है, दिस इज़ दिसंबर एंड, और वहाँ पर उनके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है कि कौन हमारे बैग उठाएगा, कुछ होगा. अब हमने सबने अपने अपने बैग उठाए हैं, इतनी इतनी बर्फ़ में हम पैदल चल के जा रहे हैं. एंड दिस वॉज द फर्स्ट स्नो आई सॉ इन माई लाइफ. It was still the best trip of my life. Dude, it's amazing. I don't think it matters कि आप वहाँ तक पहुँचते कैसे हो. I was so happy to see mountains for the first time in my life. I couldn't care less about it. Yeah, भाई तो एक तो I have gone to 2 college trips. One is me and my friends decided after college graduation हो गया है, अब हम गोवा जाएंगे. तो गोवा की होती थी एक ओवरनाइट बस, और उसके बाद मुझे पता नहीं मैंने वो कैसे सर्वाइव की. एक तो दैट बस स्टॉप्स वंस थ्रू आउट द एंटायर नाइट. So you dehydrate yourself before the journey, obviously, क्योंकि सूसू कहाँ करोगे as a woman? Where will you pee? Men will pee in a bottle and throw it outside on the road, but women, what will we do? Yeah. So we would dehydrate ourselves 3-4 hours before, and then we would take that whole 18-hour bus journey to Goa, and we would get off at Goa, take a auto to the nearest beach we could find, with no idea where we will stay, what will we do on the beach. We'll crack open a cold one and look at the sea and drink, dehydrated as fuck. So that was my one memory of Goa. That was amazing. और एक बार ना फिल्म स्कूल में थी मैं, तो एक बार फिल्म स्कूल में नहीं, फिल्म स्कूल में थी, तो एक बार ऐसा हुआ मुझे, हमें ट्रिप पे लेके गए थे लोनावला. इट वॉज अ एजुकेशनल ट्रिप फॉर टू टीच अस डायरेक्शन एंड सिनेमेटोग्राफी. ठीक है, तो एजुकेशनल ट्रिप पे हम गए, वहाँ पे किसी ने हमें गमीज खिला दी, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई एवर हैड एडिबल. मुझे जेन्यूनली लगा वो जो कैंडी शॉप में नहीं मिलती जो गमीज, तो मुझे, और बेर वगैरह, बेर बना हुआ था उसके ऊपर, तो मुझे लगा कि हाँ चलो, आई एट इट, एंड फॉर एन आवर एंड अ हाफ आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन, एंड आई वॉज लाइक हाँ, सो व्हाट इज द बिग डील, व्हाटएवर, इट्स जस्ट अ गमी. एंड देन दे वर लाइक कि हम आपको एक क्रेन पे एक्सरसाइज कराएंगे, जो क्रेन नहीं होती फिल्म्स के अंदर जैसे ऊपर धीरे धीरे जाती म्यूजिक वीडियोस पे, तो दे लाइक कि हम ये डायरेक्शन आपको सिखाएंगे क्रेन के ऊपर, तो आप पैर बना लीजिए. मैं और हर्षिता मेरी बेस्ट फ्रेंड दोनों, आउट बाय दिस टाइम वी आर बोथ सीइंग थिंग्स विच आर नॉट देयर. एंड देन दे आर लाइक कि क्रेन ऊपर जाएगी तो आपको 15 किलो का कैमरा टिल्ट बैक करना है, जूम आउट, एक जना जूम आउट करेगा, एक टिल्ट बैक करेगा, एक टिल्ट डाउन करेगा. ये 3 लोगों की एक्टिविटी है, जिसमें से 2 लोग बहुत ही ज्यादा हैं, ठीक है, और द थर्ड गाय इज स्कैर्ड ऑफ हाइट्स. So as the crane starts going up, my friend Harshita is like, bro, I'm high as fuck, I can't. She's South Indian. Like, I'm high as fuck, I can't figure out. I'm like in my this state of mind, I'm like tilting the camera and zooming out also and doing this while these 2 people are absolutely useless. And then I actually managed to do something like decent. So the teacher was like, good, can we do 2 more takes? I said, मैं मर जाऊंगी यहाँ से, मैं कूद जाऊंगी 20 फुट ऊपर, मुझे को यहीं से कूदा दो. तो then after that, after I got over that, then it was fun. But it was my first ever high, which was I think young adults end up doing such stupid shit. I think every day is just an attempt to not die. Yeah. Like it's insane to me. Like I'm thankful I'm alive right now. On the same trip we decided कि हम लोनावला में हैं, हम एक मतलब उसके just next to that property there was a church and there was a graveyard in the church. तो we were like कि हम भूत बुलाते हैं. तो हमने भूत बुलाया, और उसके बाद भी डिसाइडेड कि यार कुछ नहीं हुआ, मतलब उस टाइम पे कुछ नहीं हुआ. इट वाज जस्ट लाइक वी वेंट टू द ग्रेवयार्ड, वी डिड द वीजा बोर्ड थिंग, व्हाटएवर, एवरीथिंग वाज ओके, नथिंग हैपेंड, नो स्पिरिट केम टू अस और व्हाटएवर. उसके बाद हमने सोचा कि चलो हम अल्कोहल हमारा खत्म हो गया, अल्कोहल लेने चलते हैं लोनावला सिटी में. दिस वाज इन द हिल्स. तो हमने ऐसे जैसे तैसे थोड़ा आगे वॉक करके ऑटो पकड़ा, और ऑटो वो नहीं होते एकदम ऐसे सांसों की और उसमें एकदम ऐसे ग्रीन एंड रेड लाइटिंग, मस्त ऑटो था, ठीक है, वाइब. तो वे सिटिंग इन दैट ऑटो एंड दैट ऑटो गाय इज ड्राइविंग, और ड्राइव करते करते बोलते हैं साथ में बुलाया है क्या किसी को, एंड वी थिंक ही इज ड्रंक, वी थिंक ही इज जोकिंग.
ठीक है, तो मेरा जो फ्रेंड है, वन ऑफ आवर फ्रेंड्स वाज जोकिंगली सेड कि क्यों हम भी तो हैं 4 जने, बोलते हैं वो नहीं छोड़ेगी, अब आ रही है पीछे वो, नहीं दिख रही क्या, दुल्हन की तरह सजी हुई तो है, नहीं दिख रही क्या तुम्हें? एंड देन वी वर लाइक कि ये बकचोदी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, हम अल्कोहल लेते हैं, वापस जाते हैं, एंड देन दैट इज इट, नथिंग हैपेंस फॉर द रेस्ट ऑफ द ट्रिप. A week later, our friend comes to college and he looks like he's not slept, he's not brushed his teeth, he's just like really haggard, and he's like, for the past 3 nights I've been having a dream that a bride is like walking behind me constantly. Everywhere I go there is a bride decked in clothes, like red clothes, and is walking behind me and slowly coming closer and closer. Every time at night I go to sleep, she's closer than before. And then it has happened that he started seeing her from the corner of his eye while he's awake. So then we've had to figure out कि अब इसका exorcism कराए, इसको पंडित के पास ले जाए. हम बॉम्बे के अंदर जहाँ लोग दारू पी रहे हैं, हम इसको पंडित के पास लेके जा रहे हैं. भैया इसको दुल्हन दिख रही है. What did you guys do? का इलाज है क्या? What did you guys do? Nothing, we just did that. फिर वो I think उसका पंजाब में कोई वो हैं जो झाड़ा वाड़ा लगाते हैं. फिर finally he had to go there and he said कि तुम तो बहुत ही पता नहीं कोई सुहागन मर गई थी और उसको तुम पकड़ के लाए हो, ये तो तुम्हें छोड़ेगी नहीं क्योंकि तुम अनमैरिड आदमी हो, ये तो तुम्हें छोड़ेगी नहीं. Sounds like that scene from Mohabbatein where she's waiting for him at the train station. But What the fuck? I've had something very similar happen to me. When it's very creepy that the driver said that to you. Yeah. I was in this place for again multiple trips of NIFT. तो हम मोजड़ी मेकिंग के लिए गए थे. तो हमारा एक क्राफ्ट क्लस्टर प्रोग्राम होता है, उसके लिए हम दौसा करके एक जगह है वहाँ गए थे. दौसा. तो पहली रात तो हमें उन्होंने ऐसे होटल में रुकवाया जो कि बहुत ही गंदा था. तो रात को जब हम सोने गए तो एक तो स्टेन्ड शीट्स थी, I don't know, gum stains or whatever the fuck they were. They were disgusting. They were gum I think they were because रात को ऊपर मुजरा हो रहा था. Oh wow. And there were multiple men who had Oh, come I to the heard hotel. gum. I was like chewing gum. नहीं यार. तो नहीं हो. अरे. Sorry, मैं थोड़ी बहरी हूँ. Sorry. ऊपर मुजरा हो रहा था and then as a class we took a call कि हम यहाँ नहीं रहेंगे. तो हम थोड़ा सा आगे सामोद पैलेस के पास एक होटल था, वहाँ पर जाकर हम रुक गए. तो विलिंगली कुछ 6-7 जो हम खुराफाती लोग थे वो हम ड्राइवर को बोलते थे, जो ड्राइवर हमारे साथ पूरा दिन काम करता था उसको हम कहते थे कि प्लीज़ टेक सम एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम अस, हम रात को गांव घूमना चाहेंगे. और उस टाइम बारिश होती थी तो मतलब सड़कें अच्छी थी भी नहीं और देयर वर पॉट होल्स एवरीवेयर, बट वी वर लाइक हम तो जाएंगे. और फिर और ना वहाँ से बहुत पास भानगढ़ है. तो रास्ते में ऑब्वियसली जस्ट फॉर फन्स एंड थ्रिल्स लाइक भानगढ़ चलेंगे. तो एक पॉइंट पे हम रात को निकले हैं. कहाँ जा रहे हैं? मैकडॉनल्ड्स जाना है 80 किलोमीटर अवे, बर्गर खाने. ठीक है, एम क्वेस्ट या तो फूड या दारू, वही है जिंदगी, इज फूड एंड दारू. तो हम जा रहे हैं, 6-7 लोग हैं गाड़ी में. हाँ ये हूँ भानगढ़. एक 1 पॉइंट हम ड्राइवर को बोलते हैं भानगढ़ कहाँ है सर बताओ. कहता वही तो जा रहे हैं. बोले क्या वही तो जा रहे हैं, मतलब क्या? हाँ आ रहे हैं वो आ रहे हैं. तो हमें लगा कि ये तो हम ज़्यादती कर रहे हैं इनके साथ, ये दिन में भी ड्राइव करते हैं रात को भी ड्राइव कर रहे हैं, ये शायद ठीक नहीं है. तो हम थोड़ा सा हमने बोला प्लान चेंज करते हैं, ये कुछ हो रहा है, ही इज़ हैविंग आइदर विजन. सबकी फटनी शुरू हो गई. इतने में मैं एकदम ड्राइवर के साथ बैठी थी और मेरे साथ एक और लड़का, ऑब्वियसली फंस के गए हैं हम जीप के अंदर, थार के अंदर. मेरा दोस्त वीडियो बना रहा है और वीडियो बनाते बनाते लाइक ये क्या है, ये क्या पास किया सामने से, ये कुछ पास किया सामने से. भाई लड़कियां रोनी शुरू हो गई. वो जो लड़की हमेशा रोती है वो रोना शुरू हो गई. हाँ, एक हमारे साथ सिखनी थी, उसने शब्द बोलनी शुरू कर दी, ये पीछे करो, गाड़ी रोको. मैंने कहा नहीं यार बर्गर तो खाना ही है ना, देख जो भी है अब ये इधर ही है, ये मेरे को लग रहा है एक जगह स्टेशन है, ये नहीं आने वाली पीछे. नहीं, हम पीछे गए, लड़कियां रो रही हैं कि हम क्यों, why are we like fucking with the night, why are we fucking with the supernatural power. I was like no but we did not know. We are just going to McDonald's. भाई लोगों ने अपने तंत्र मंत्र ये वो, जो एक ग्रुप है जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं करता है, तो ग्रुप ही ऐसा है, इस ग्रुप से हम सब मरेंगे. सब लोग अपने रूम में जा के रो रहे हैं. इतने में गगन जो लड़का था, he's like मेरी उंगली है ये देख मेरी उंगली, ये देख से.
किसी को मत बताइए, नहीं बताएंगे। भाई लोग एकदम क्रैश आउट, फ्रीक आउट में बैठे हुए हैं एंड उस बंदे ने अपनी एक उंगली ऐसे करी, आज तक नहीं पता किसी को कि वो उसकी उंगली पता थी। चल जाएगा। Guys, it's Gagan's finger. You can check with Gagandeep Singh Kumar. So that reminds me college friendships. Oh yeah. आई थिंक आर फ्रेंडशिप्स फॉर लाइफ, क्योंकि स्कूल फ्रेंडशिप्स ऐसा होता है कि आपकी पर्सनैलिटी आपको खुद को ही पता नहीं होती, इट्स स्टिल अ फ्रेंडशिप दैट इज डेवलपिंग. इन कॉलेज यू नो हु यू आर प्रीटी मच, यू स्टिल हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम लाइफ, but your formative years, like little bit of the front lobe has developed, and you know what your personality is, yet you have so much ambition ahead of you, you have so much life to live ahead of you, and that is the moment where people find you at that point in life. And I feel like these friendships are the ones that stay with you forever, because they have seen you when you had nothing, and now when you have a lot of things, you have, like, a lot of us have like a lot of success, we've seen a lot of success, we've seen a lot of ups and downs, but truly at the heart of who we are, those are the people who accepted us. Not school friends, not work friends, but college friends. So can you tell us a little bit about like your closest college friends? हम मानते हैं कि हम सब पे कर्स है और हमारी डेस्टिनी थी कि हम सब मिले, क्योंकि हम सब ही लाइफ में अभी सेटल नहीं है. एंड सेटल व्हेन आई से इन द मोस्ट कन्वेंशनल सेंस ऑफ सेटलिंग डाउन विद द पर्सन. We are like a bunch of millennials who are not with anybody right now, which is like, and it's very weird because our entire group, save for 1 or 2 people जिनकी 24-25 में शादी हो गई थी because of the families they came from, we are all still figuring and free and figuring our lives out. Not that they don't want to settle down with somebody, it's just that all of us are there. So मैं अभी इतने सारे Gen Z बच्चों की शादी देखती हूँ, मैंने कहा who is writing for the millennials who are yet not married? What about them? Where is their representation? पता नहीं है भी हैं, हो भाई हो, मुझे please comments में बता दो कि तुम लोग exist करते हो. Like a lot of millennials who are yet not settled or married or whatever with somebody, partnered up, whatever. But they're still in my life. We're very, very close to each other. We fight a lot. Oh yeah. We fight too much. And what do your fights look like? What are they about? Largely the same fight जो तब हो रही थी जब वो लड़का हमें स्टॉक कर रहा था कि तू ऐसे कैसे बोल सकती है कि मैं मेरा कॉटन क्यों कॉटन से मैं किसी को मैं कर सकती हूँ प्रोटेक्ट. हमारी अभी भी वही फाइट्स हैं, हमारी कोई और फाइट्स हैं ही नहीं. They're all like बिहेवियरल कि तूने मुझसे ऐसे कैसे बात कर ली. हम बड़े हो ही नहीं पा रहे हैं. हमारे somehow with my school friends I feel no, it's the same. It's the absolute same. I think we just fight with each other over the most like basic stuff. कि तूने उस दिन जब तूने मुझे पूछा नहीं ना उसके बारे में, अब तू देख मुझे तेरी टोन पसंद नहीं आई. 2 महीने के लिए गायब. Yeah, I love the fact that I have not spoken to my college friends for 6 months बीच में, क्योंकि हमारी लड़ाई हो गई है और 6 महीने बाद हम मिले हैं तो एक दूसरे से नजर ही नहीं मिला पा रहे कि I guess that happened. It is absolutely insane. I've done so many trips. I've done this Bangalore trip, Chennai trip, Dosa, every trip we've fought on. Then I did one fam trip with them to Goa. It was a disaster. After that trip, my mental health went for a toss. But you know what? I would do it again. Yeah, I would do that shit again. And उस trip पे तो सबकी सबसे लड़ाई हो गई थी. And it was some resort that booked for all of us. And it just went all. It's so much drama, and I'm like, it's actually so much like hormones, and everybody's at a different place in their life. And then my career is like so different. There's not a lot of my career I can share with them. Yeah. And I feel like sometimes they think, why should we tell Kusha about it? But हम ऐसे ना ऐसे खुरेद और हम लेते हैं कि I'm gonna scoop it out of you even if you don't tell me. Yeah. So I am somehow this person who's be like, नहीं बना के रखो रिश्ते ना बना के रखने ही अच्छे लगते हैं ऐसे. And but everybody else is almost at a point where they're like, we love you and we wish like we met each other more often, but that's not the case a lot of times. But we are connected. We have a group, it's called Just for Fun. Then sometimes it's college girls. Sometimes we've gone through multiple names for that group. But Crazy. क्यों? But उसमें इतनी एक्टिव, कभी एक लड़की तो हमेशा छोड़ के रखती है उस ग्रुप को. हाँ, नाराज बुआ ऑफ द ग्रुप. Always. तो उससे अलग से उसको रीच आउट करना पड़ता है कि हाय
तेरे को ग्रुप में नहीं मत करना, नहीं करेंगे, तो बोला ही नहीं, किसी ने बोला ही नहीं ऐसा, तो नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे। फिर अगर कुछ ऐसा बोल दिया जाए, जो 2 गर्ल्स हैं जो कभी भी ग्रुप छोड़ सकती हैं, तो कितनी बार तो ऐसा हुआ है कि 2 ही लोग रह गए उस ग्रुप में, तो ढूंढ के वापस लाना पड़ता है उनको। आई थिंक नेविगेटिंग कॉलेज फ्रेंडशिप्स in adult life is just, I just hope things go well. Like if things are not going well for all of you as a group, Yeah. it also impacts how we feel about each other also. True. But somehow we've always survived it. Like whether it was my birthday last year, they were there for me. My one friend from the US came with her husband for New Year's at my home. We always find those pockets because we'll be a shell of a person without each other. True. It would mean nothing. And trust me, like I'm at this point in my life where I feel like I've ticked off a lot of things in my life, and it feels nothing if you don't have people to celebrate it with. Absolutely, Yeah. bang on. You feel like a small person who, Yeah. I'm like, this nothing means anything Yeah. if you don't have people to celebrate it with. Bang on. So we do keep finding our ways back to each other, but largely it's a lot of drama. You know that like that reel, like edited like it's a reality TV show. I was just thinking about that. My lord, it's insane. Like and all of us have shrill voices, so I'm sure it's like horrible for anybody who's around us. I have a trio sort of a thing, Yeah. 3-girl group, and Tulsi is pretty patient. She's like, I'm out of this. I'm in London right now. I'm in Singapore. I'm there. I'm there. She is living the life. Yeah. How career has absolutely nothing to do with what you're studying, with what you studied in college. I think all of us. तुम तो काफी उस फील्ड में हो वैसे. You're not. No, I mean I don't know what I've studied. I think after आप 12th trips कर रही थी, टैनरी में ट्रिप कर लिया आपने, जूतियों में ट्रिप कर लिया. मैंने आई थिंक सर्वाइवल, लाइक कैसे अपनी वुमेन सेफ्टी को टॉप पे रखना है, मैंने वो सीखा है. मैं अपने आप को सेफ रख सकती हूँ. Yes. True. वो सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल है, टू नॉट 100%. डाई, Yeah. Actually. टू नॉट गेट harassed. As a woman, yes. I studied finance, so like I think needless to say, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ अपनी But I पढ़ाई का. feel कि मतलब I don't agree with a lot of people nowadays who drop out of college. Other than like if you're dropping out for financial reasons, I completely understand you're dropping out because you need to work to support your family. But if you're dropping out for career, just to like start a startup or just to do something which you can do 3 years from now, but college is such a primary part of your life. That is an experience you should not miss out on. At all. If you can afford to, you must go to college because the kind of पढ़ाई के अलावा सब होता है, but वो सारी चीजें ही बाद में याद आती है. But no, it's What in the, वही बातें तो याद आती हैं. That's तो true. आई थिंक आपको लाइफ स्किल समझ आती हैं उस टाइम पे. कॉलेज में यू रियली अंडरस्टैंड हाउ टू बोर्ड अ लोकल ट्रेन. आई लर्नड इन कॉलेज. इट इज समथिंग Yeah. दैट इज स्टिल यूजफुल टू मी. True. हाउ टू नॉट डाई इन अ सिटी लाइक बॉम्बे, हाउ टू नॉट गेट डिप्रेस्ड. दीज आर थिंग्स दैट Yeah. आई हैव लर्नड. हाउ टू ड्रेस योरसेल्फ. How to get around the dress code. Yeah, how to get around the dress code is something we learned in सामने college. टोट बैग अपना छुपाती थी, और क्योंकि शॉर्ट्स अलाउड नहीं थे तो यहाँ से पैंट फाड़ के जाती थी मैं. और क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे तो आई लर्नड हाउ टू डू इट. सो आई यूज्ड टू, और एक ट्वीजर से निकालती थी, पता है, ताकि वो धागा लगा रहे. वाह, अरे to be a woman, what an experience, right? What a जुगाड़ू experience. बहुत मस्त. I've had like the most fun in college with my friends, and I think मेरी लाइफ का कोर एक्सपीरियंस वही है, क्योंकि मैं रोज कॉलेज में बढ़िया काम वाम कुछ तो नहीं करती थी, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो रही थी. दोस्त के साथ बैठ के उसके घर पे जाके खाना खाया और अपने घर रात में 8 बजे वापस आई हूँ. 8 से 8 किसका कॉलेज होता है? मेरा होता था. होता है यार. कॉलेज इज अ फुल टाइम जॉब. Correct. जॉब इज अ पार्ट टाइम जॉब. कॉलेज इज अ फुल टाइम. कॉलेज में आपको देखो प्यार भी करना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट भी करनी है, टीचर से लड़ना भी है, रिबेलियन भी है, आपको फिल्में भी देखनी है, आपको अपना पूरा एक आपको प्रोटेस्ट पे भी जाना है. Correct. एक आपका- grounded personality तभी तो बनती है. मेरे ख्याल से आप 12th के बाद वापस एक कोक में जाते हैं, विच इज द कॉलेज कोक. आप उसमें से फिर वापस निकल के बड़े होते हैं. तो कॉलेज इज मेरे हिसाब से फुल टाइम जॉब. True. जैसे इवन प्यार इज अ फुल टाइम जॉब. एक कैनन इवेंट मैं बस पूछना चाहूंगी कि डिड यू डेट एनीबॉडी इन कॉलेज? तो मेरा जो पूरा फनी पर्सनालिटी है आई कॉलेज से था, बिकॉज आई वाज लाइक
I was in like I was a fatty, right? So then that never became like a thing that I would let it stop me from doing anything. So कुछ वक्त तक मैं pick me रही और फिर कुछ वक्त तक मेरे को थोड़ी अक्ल आ गई कि ऐसे नहीं करते यार, क्या हो गया, लड़कियों ने रेड लिपस्टिक तो लगाई है, इसमें इतना मतलब गुस्सा होने वाली क्या बात है, इसमें मतलब कोई वो गलत नहीं है. सो क्या होता था कि अब मैं कहीं अर्बन पेंट या कहीं भी जा रही हूँ, पहाड़गंज जा रही हूँ, तो लड़के मुझे अप्रोच नहीं करते थे क्योंकि ना हायरार्की होती है देखो डेटिंग कल्चर में, और मुझसे ज़्यादा हॉट मेरी दोस्त बहुत ज़्यादा थी. सो मेरा नंबर आते आते मतलब जैसे एक्चुअली आई गेट कास्ट प्रॉपरली बिकॉज हीरोइन की बेस्ट फ्रेंड मुझे रोल मिलते हैं और वही थी मैं. तो मतलब मैं थी हीरोइन की बेस्ट फ्रेंड, और फिर वो पर हीरो का बेस्ट फ्रेंड भी मुझ में नहीं इंटरेस्टेड होता था. तो अगर मैं अर्बन पेंट पर जाके मेरे पे गन रखी जा रही है और मेरे को कोई अप्रोच नहीं कर रहा है तो आपका वेपन बन जाता है फन. तो फिर आपकी पर्सनैलिटी सब कुछ है, आपके पास और कुछ है नहीं, तो आप अपनी पर्सनैलिटी को ही एकदम टॉप पे रख के मैं जोक मारूंगी, कोई नहीं हंस रहा मैं फिर मारूंगी, मैं 100 बार मारूंगी, मैं एक्सेंट करके दिखाऊंगी, मैं कुछ भी करके दिखा सकती हूँ. मैंने एक बार शीला की जवानी पे डांस किया था अटेंडेंस के लिए. यस, आई वाज लाइक, मैं अपनी एक साउथ इंडियन टीचर के आगे साउथ इंडियन लैंग्वेज को अप्रोप्रिएट करती थी और वो पागलों जैसे हंसती थी. शी यूज्ड टू बी लाइक व्हाट आर यू डूइंग अंटे अमलापुरम, मैं वो गा के सुनाती थी विद लाइक व्हाटएवर लिरिक्स, शी यूज्ड टू बी लाइक दोबारा करो, एंड यू नो इट यूज्ड टू बी सो फनी. So I feel like I 90 out of 100 got my big personality from college. Because when dating doesn't happen for you in the way that it happens for other people. Like I had a guy tell me, you lose 10 kgs, I will date you. And I was like, ये तो अच्छी बात नहीं है बोलने की. But then I started losing that weight. And then he was interested in me for a long time. And then I did not end up dating him. And then he's like, तू बता रही है, मेरे को नहीं बता रही, मैं हफ्ते में एक और लड़की ढूंढ लूँगा. तो उसने ढूंढ ली. तो you know, but the thing is, I was so married to my personality of being like fun and funny and this. हाँ मतलब I also used to thrive on that personality. मेरे दोस्त 4 दोस्त मेरी बातों पे हंस रहे हैं, मेरी लाइफ सेट है, मैं घर जाऊंगी बहुत खुश. I was that person in college who's like मैं edgy हूँ. I have a pixie cut, I have a hair tattoo. I had hair tattoos. I had like a very edgy way of dressing. I always looked angry. So, and I was that person in the friend group where like if anybody has to approach my friends, you have to get through me. Yeah, same. Because I'm like, मुझे तो कोई लड़का मिलने नहीं वाला. Might as well be somebody people fear. Yeah. So I was that. चूतियों को डेट कर लिया था कॉलेज में, बट देन कोई ढंग का लड़का तो मुझे नहीं अप्रोच करता था. मेरे दोस्तों के पास ही था वो. अगर वो लड़का BMW में पिकअप करने आ रहा है तो मेरे लिए तो नहीं है वो. टू फनी. मैं फ़ोन पे लड़कों से, मतलब मैं एक लड़के से फ़ोन पे बात करती थी और फिर उसको मैंने अपनी एक पिक्चर भेजी कि मैं ऐसी दिखती हूँ. फिर वो इतना डिसअपॉइंट हुआ जब मैं उससे एक्चुअली मिली. वाज लाइक, पर तू तो ऐसी नहीं दिखती. मैंने कहा ऐसी ही तो दिखती हूँ, बस बाल ही तो छोटे कर. मिलने पे मेरा मामला खराब हो जाता था. आई फील लाइक ऑन फोन आई वाज लाइक, दे यूज्ड टू बी लाइक, यू आर द गर्ल ऑफ माय ड्रीम्स. And then this should remain a dream, you know, this whatever distant dream. So I didn't have any luck with boys. I'm not great in that department, and that's okay. I think a lot of people are not very skilled in that, and they'll never be. Yeah. It's absolutely okay. Yeah. I don't have very many dating experiences, and I wish I had more of those. Yeah. But I ended up with like female friendships, and absolutely. वो तो कमाई है मेरी जिंदगी की यार. उससे ऊपर क्या है, मतलब क्या ही म्यूचुअल फंड्स, क्या कुछ उससे बड़ा क्या है. मतलब on a bad day, my friend and I can reach out to each other कि यार नहीं हो रहा आज. क्या, what is this adulting? And we're also like in our 30s now. We need each other more than ever. Yeah. तो मुझे पता है कि सबसे मतलब गुस्सा होके कुछ होके ये वापस यही आना है इन्होंने. This is where it's going to be. और हम होंगे एक दूसरे के लिए और रोएंगे साथ में, जो भी करना है करेंगे साथ में. It's always. उनको कॉल किया था मैंने यहाँ पे आने से पहले. मैंने कहा आई थिंक हम कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं, बताना जरा क्या क्या हुआ है. And then one of them was like, listen, you should call her. मैंने कहा पर मुझसे भी बात करी. उसने ग्रुप छोड़ा हुआ है अभी. She sent me 2 voice notes of what all stories to share with you guys. So I think it doesn't matter where you are in your life. तुम्हारी क्या चल रही है क्या नहीं. We have to be there for each other. That's the only obligation you have. 100%. Do you have any story? No context. You just want to tell people your college story. Yeah, I was like, कुछ अगर हो तो please लेके आना.
I have this one story which is very similar to yours actually, पर मेरे साथ स्कूल में हुआ था. हम स्कूल के बाहर खड़े थे. हाँ, मेरा एक दोस्त गाने चला रहा था कि फोटो तेरी बटुए चिपाई फिर दे ठेके या नित खड़के, तो हम उस पर डांस कर रहे थे. ठीक है, 11th-12th में थे, स्कर्ट छोटी हो गई थी. ठीक है, इतनी बगावत घर में हो चुकी थी. तो अब हम कर रहे हैं, एक बार बार गाड़ी घूमे जा रही है. ठीक है, गाड़ी पे बहुत ही लिखा हुआ था क्लियरली, आई एम नॉट गोइंग टू नेम कि वो कौन थे, बट लिखा हुआ था कि वो गाड़ी किसकी थी. ठीक है, जैसे हम मैंने एक गाड़ी देखी हुई है, ऑल्दो दे आर नॉट द वंस इन द स्टोरी, जिसमें गाड़ी के आगे लिखा हुआ है जाट आ रहे हैं, गाड़ी के पीछे लिखा हुआ है जाट जा रहे हैं. Brilliant. Art. Bhagwata's type. Art. My type. For this reason alone, I want to be a jat, so that I can write jat aa rahe hain, jat ja rahe hain. You better note that. Anyway, तो वो हमारे ऐसे आसपास घूम रहे. तो एक दो बार ना उनने ऐसे घुमाया और हमने ऐसे मैंने ऐसे स्माइल कर दिया. And I was not smiling. I was just smiling that why are they like going again? And you know what? Even if I smile, it's absolutely bloody okay, right? That you can find anything amusing, and you can also like admire the fact that you can be happy about the fact that someone's appreciating you, whatever that was. तो उसके बाद क्या हुआ कि वो हमें ज़्यादा फॉलो करने लग गए. तो मैं फटाफट अपने दोस्त की गाड़ी में बैठी और हमारे दोस्त के पास गाड़ी थी. Yes, this is very important to the story, and this is 12th grade. गाड़ी में बैठी और हम वहाँ से निकल गए. हम घर की तरफ जा रहे हैं. उन्होंने आके रेड लाइट से पहले अपनी गाड़ी पार्क कर दी. उन्होंने कहा रुको. Oh my God. ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि लड़के अब पिटेंगे, और हम 2 लड़कियाँ थी, 2 लड़के थे. वो बाहर आए, कहते बाहर निकालो उसको, लड़की को. कहते क्यों भाई, क्यों निकालेंगे? पसंद आ गई है जी लड़की. मैंने कहा तो कहते पसंद आ गई तो मैंने कहा, मैं बाहर निकली, मैंने अपने दोस्त को मैंने कहा ये मेरा बॉयफ्रेंड है एक्चुअली. तो मेरा फ्रेंड कहता मैं नहीं हूँ भाई इसका बॉयफ्रेंड. मैं नहीं हूँ, कर लो बात ही तो करनी, कर लो बात, आप बात कर लो. एंड आई वाज लाइक व्हाट जी, एंड आई वाज लाइक हाँ करो बात. किस्मत मैं क्या करूँ, मेरे दोस्तों ने मुझे अबैंडन कर दिया क्योंकि वो पिटना नहीं चाहते हैं. सी सेल्फ प्रेजर्वेशन हाईएस्ट. ठीक है, दोस्ती का ही भाड़ में. उन्होंने बोला आए, कहता मैंने हाँ जी बोलो, पसंद हो आप? मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता, आप जाइए यहाँ से. ठीक है, करके गाड़ी में बैठ के चले गए. मुझे जिंदगी भर का ट्रॉमा देखेंगे, कभी किसी गाड़ी को देख के स्माइल नहीं करना है. Final thoughts about college friendship. College life was College chill. life, yeah. बढ़िया मजे. It's a good important experience to have if you can afford, and if you have the mental space to please go to college. ट्रिप्स वगैरह पे चले जाओ यार. बढ़िया ट्रिप्स वगैरह नहीं मिस करनी चाहिए. कॉलेज चाहे जैसा भी हो, यहाँ पर तो 2% अटेंडेंस में भी मुंबई कॉलेज आर ग्रेट. 2% अटेंडेंस में भी आप एग्जाम देने जा सकते हैं. मेरा भाई यहाँ पर HR में था, उसकी मैं गार्जियन थी, और वो मुझे देख कर कह रहे हैं आप इससे छोटी ऐसे लग रही है. और बढ़िया मैं साइन करके आई हूँ. मैंने अपने भाई को बुलाया था स्कूल में कि आई वाज लाइक कि मेरी अटेंडेंस शॉर्ट है, वो बोल रहे पापा को आना पड़ेगा. तो माय ब्रदर वाज सो हैप्पी, ही इज लाइक वाओ. वो एकदम अपने लॉयर कपड़ों में आया है, कॉल ब्रीफकेस लेके. हाँ मैं ही गार्जियन हूँ इसका. कि बस आई एम लाइक अटेंडेंस शॉर्ट है मेरी, जस्ट बी लिटिल सीरियस. Yeah, but they give you admit card. Like Mumbai colleges are very unserious. They're only serious about fests. And they're not serious about anything else. Placement यहाँ नहीं मिलेगी, पढ़ाई यहाँ पे नहीं होती. HOD ढूंढते रह जाओगे, घंटा नहीं मिलने वाला. At the end of the year वो तुम्हें डिग्री भी नहीं देंगे भाई. No convocation, nothing. डिग्री ले लो, वहाँ नीचे ऑफिस में है, 2nd फ्लोर पे ऑफिस है. That's it. So impersonal, just like this city. But it's very freedom. मतलब बहुत freeing city है, because मैं तो रात में बढ़िया बाहर जाती थी. 12-1 बजे घर आओ तो it was chill, I think. I don't think they attach any value to anything. No. Like anytime I get really like worked about something, they'll be like, it's not that big a deal. Don't take it so seriously. Why are we taking yourself so seriously? And initially I was like, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? खुद को नहीं seriously लूँगी, मतलब मैं ही तो हूँ भाई, क्या बात कर रहे हो? He's like, yeah, you're not supposed to take yourself so seriously. अरे अच्छा ऐसे करना है क्या? क्योंकि मैंने ना 4 महीने के लिए मैंने PR हायर की थी लास्ट ईयर. तो मैंने कहा ज़रा एक असेसमेंट लो कि मेरे बारे में कुछ भी लिख देते हैं, मेरे कंसेंट के बिना कुछ भी लिखे जा रहे हैं ये भी. तो मुझे फिर वो वापस आए, कहते वो ऐसा बोल रहे हैं कि कुशा डज कॉमेडी बट शी स्टॉप टेकिंग अ जोक. एंड आई सेड
अच्छा ऐसा है क्या, चलो अभी थोड़ा हील व्हील होकर आते हैं, थोड़ा सेल्फ वर्क करके आते हैं, अभी यू नो कबूतर हैज बीन शॉट डेड बाय परमीते, कोई तो राज आएगा मुझे बचाएगा, एंड देन मे बी आई विल स्टार्ट टेकिंग अ जोक. सो आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन्स आई हैव लर्नड बीइंग हियर इज टू नॉट टेक योरसेल्फ सो सीरियसली. यही बात मैं अपने दोस्तों को जाके बताती हूँ और वो मुझे ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि छोड़ देते हैं मैं मुंबई आई हूँ, वो तो दिल्ली में ही रहता है. Yeah. They're in the middle of everything. So my biggest advice to people would be ki never ever let your friendships die unless they're obviously toxic, then of course leave them. Never let them die if they're worth it. Do not mix your school and college friends. Yes. Never, please don't. That is another episode altogether. Oh my God. अगर तो तुमने करा दी दोस्ती स्कूल और कॉलेज फ्रेंड Disastrous. उसके बाद पता है क्या होगा, there will be a honeymoon period when for 2 years they will be together and they will not even bother telling you about it because you're away, you're busy with your life. And then उनकी होता है घमासान युद्ध. और उसमें आप ऐसे खिंचते हैं. मेरे घर में एक बार मेरी स्कूल फ्रेंड और कॉलेज फ्रेंड जो लड़ाई हुई थी सुबह 6 बजे तक, मैं भूल नहीं सकती. तो डू नॉट मिक्स योर कॉलेज एंड स्कूल फ्रेंड्स. मैं तो कोई ग्रुप कोई मिक्स नहीं करती. एक बार बर्थडे पे किया था एंड आई वाज जस्ट लाइक वो दिस इज नेवर हैपनिंग अगेन. imploded very bad. बॉयज आर हिटिंग ऑन गर्ल्स and the girls are you know so Angry mad about at each something, other. Oh मुझे my god. attention नहीं दिया किसी ने मेरा, मैं थी वहाँ पे, I witnessed it. Oh fuck yeah, you were there. Yeah. I have left early. तो tried to mix college friends, school friends, checks out, and creator friends. Oh. No brother, no. No. You think I need to go to a reality show? It's right here. मैंने मेरे घर में आई थिंक कुछ 2-3 साल पहले बर्थडे पे मैंने चांदनी और अपने वाले फ्रेंड्स को बुलाया था. ऑल ऑफ अस आर वेरी वोक क्रिएटर फ्रेंड्स एंड हमें पता होता है कि क्या बात कैंसिलेबल है, क्योंकि हम इतने प्रेशर में जीते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं. बिल्कुल हमें पता है सब कि मीडिया लिटरेसी फुल. मेरे बाकी फ्रेंड्स को नहीं पता. अनस आया था, अनस का वो पता है, उसने आईडी कार्ड देखा, अनस से पूछा व्हाट्स योर एज. तो चांदनी ने अनस से पूछा व्हाट्स योर एज. वो कहता है आई एम 26. शी इज लाइक स्टॉप इट, यू आर लाइंग, यू लुक सो मच ओल्डर. And To then, do that to Anas of all people. और मुझे ये पता नहीं है मेरे घर पे हो रहा है. चांदनी गई है, कह रही डू यू हैव योर आधार कार्ड एंड ही इज लाइक या. She saw it. She was like, "Oh my God, you look so much older in your photos also." भाई अनस को उसने धाक करके, वो तो अनस था, कोई और होता तो भाई क्या लड़ाई होती वहाँ पर. कोई और होता ना तो सोचता कि she's into me. Oh, ये yes. मत बोलो, वो तो अनस था, green अनस flag. था वो तो. कोई और होता this is a flirting star. ये तो मर रही है मेरे लिए. मेरे बॉयफ्रेंड से मिली है, पुणे किड, वोक किड, कॉलेज से ही वोक. Who hurt you, girl? Bangers after bangers. You'll meet her. Chandni. That's I her have met humor. Chandni. That's her humor. You should get her on the podcast. Oh no. Podcast बंद हो जाएगा. She's serious. This is not funny. Okay, it's not All funny. of this is serious. Oh my God, I'm scared to meet her. Yeah, so I think that brings us to the end of this episode. कुशा गई कि सब्सक्राइब करने के लिए लोग उसकी बातें सुनते हैं. Obviously, how can you not subscribe to this channel, guys? Do it immediately. It's one of the most promising podcasts to come out of this country. How are you not already here? Like it, share it. इसका लिंक लेके अपने Instagram स्टोरी पे शेयर करो, Snapchat पे शेयर करो, Facebook पे भी शेयर कर दो, हर जगह फैला दो, इसको रेवोल्यूशन बना दो. Because shut up. We're talking. Bye, mom. Bye. Thank you so much, everybody.